Before I begin, I want to clear up a little confusion. The Ladakh series you're watching right now was actually filmed last year, and I've been planning to complete it this year. Like in episode 4 के बाद, I went to Nepal. Since Nepal is my home country and it's close to my heart, it was a trip that I simply couldn't miss. The experience was fresh, emotional, and definitely something I wanted to capture and share with you all. But at the same time, मुझे लगा कि लद्दाख सीरीज को अधूरा छोड़ना भी ठीक नहीं होगा. All those memories, all those experiences, I didn't want them to just sit forgotten inside a memory card. मैं चाहता था कि इन मोमेंट को शेयर करूं ताकि ये जो लद्दाख का सफर है सिर्फ हमारी यादों तक ही सीमित ना रहे. So before we begin the Nepal journey, there is one thing I need to do first. Finish this Ladakh adventure. तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एपिसोड 4 के बाद. और जैसे ही लद्दाख सीरीज खत्म होगी, we'll jump straight into Nepal series. As you saw in episode 4, we finally reached Padun and got the chance to explore some of the most beautiful places along with its rich history and ancient monasteries. उसके अगले ही दिन हम निकल पड़े थे the heart of Ladakh, लेह की तरफ. The journey ahead was something we had been looking forward to for a long time. The road to Leh was as beautiful as it was challenging. 30 से 40 किलोमीटर का ऑफ रोड और हर मोड़ पर एक नया नज़ारा था. Along the way, we witnessed stunning landscapes, dramatic orange-colored mountains, and some of the most beautiful roads we have ever driven on. To be honest, हर कुछ किलोमीटर बाद रुकने का मन कर रहा था. The combination of rugged mountains, endless valleys, और उनके बीच से गुजरती हुई खूबसूरत सड़कें created a view that was simply unforgettable. तो अभी हम पहुंच गए हैं नीमू. यहाँ से लेह है 35 किलोमीटर आगे. तो ये कुछ इस तरह का नज़ारा है इधर. यहाँ पर हम खाएंगे लंच. इधर लंच करने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से लेह के लिए. यहाँ पर क्या है, स्विमिंग का कुछ है. Everything was going great until After a long, tough off-road ride, the group finally reaches Nemo. Lunch never tasted so good. Suddenly, Dorji notices something is wrong. Hey, where is my backpack? His heart drops! That backpack had everything important. Flashback! At the viewpoint! He had left a backpack on that rock! No time to waste! Sewong and Dorji leave lunch behind and rush out! Let's go now! A sharp U-turn! No time for anything else! Throttle open! Racing against time through the land of high passes! Excuse us! Have you seen a black and orange backpack here? Sorry! We haven't seen anything! No luck. No one has seen it. The worry grows heavier. Finally, they reach the viewpoint. Will they find it? Or lose it forever? Wait! Dorji spots something on that rock! There! That's it! My backpack. Full relief! Joy! And gratitude. Sometimes the best things in life come back when you least expect it. Thank you, Buddha. And thank you, Ladakh! Another lesson from the mountains. Stay humble. Stay grateful. And never forget anything again. वीडियो 27 किलोमीटर पीछे आए हैं
इस छोटे से बैग को लेने के लिए, जो कि हमारा दोस्त भूल गया था इधर, वो खुद को विश्वास नहीं कैसे भूल गया। I feel like these small incidents are actually an important part of the journey. जब ये सब हो रहा होता है तब तो obviously बुरा लगता है, but later on यही वो moments बन जाते हैं जिन्हें याद करके हम सबसे ज़्यादा हंसते हैं. These unexpected little mishaps eventually turn into the best memories of the trip. उसके बाद our journey continued towards Leh. अभी हम लोग हैं मैग्नेटिक हिल पे। क्या कर रहे हो? मैग्नेटिक हिल ट्राई कर रहा हूँ। हैं? मैग्नेटिक हिल यूट्यूब पे। तो देखिए ये किस तरह से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पीछे आ जा रहे हैं। लगता है मैग्नेटिक हिल में बहुत भारी पड़ रहे हैं इनको। आगे नहीं जाना, पीछे नहीं आएगा। And after a long ride through the mountains, we finally reached the city. And the heart of the Ladakh, Leh, हमें कुछ इस तरह दिखा. तो हमारा पहला दिन लेह में, अभी जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? शेर पैलेस। और इसका भुजा तो नीचे है। इसका भुजा नहीं पीना, तेरा भुजा तो नीचे में। तो ब्रेड अंडा खिला दे। तेरा भुजा तो नहीं पीना। अगर ये भुजा बना रहे मैं नहीं पीना। तो आज हम आए हैं यहाँ पे, कहाँ पे? लेवेंडा कैफे। लेवेंडा डा इसमें फील है। वहाँ कॉफ़ी पी रहे हैं, अमेरिकानो डबल शॉट। गबरू मुंडा पहुंच गया लेवेंडा ले। और देख सकते हैं आप छपरी लोगों को, प्यारे प्यारे चेहरे। सामान खाना पीने का। हाँ वही तो किया। खाना बना के।
चलाओगे? गाड़ी में ठीक है ना भाई? सोगा पड़ रहा है, सोगा पढ़ते पढ़ते जाना भाई, ठीक है ना? जिंदा रहेंगे तो मिलते हैं लामा यूरो में, ठीक है ना? टांग पहुंच रहे तेरा? पहुंच रहे। अब हमारे नेपाली पिंकू ड्राइवर चला रहे गाड़ी, सीरियस फेस देख सकते हैं आप, देखो। मूलैंड के नाम से मशहूर ये जगह अपनी यूनिक लैंडस्केप के लिए फेमस है। The mountains here looked unlike anything we had seen before. While exploring Lamayuru, हमें एक एल्डरली मंक से कुछ फैसिनेटिंग स्टोरीज सुनने को मिली। उन्होंने बताया, according to the local tradition, the Indian scholar Naropa is believed to have dried up a massive lake that once filled this entire valley. और उसी के बाद यहाँ लामायूरू मोनेस्ट्री की स्थापना की गई। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ का सबसे पुराना स्ट्रक्चर सिंगेगंग टेम्पल लगभग 1000 साल पुराना है। इस टेम्पल को फेमस बिल्डर मंक रिंचन जांगपो से जोड़ा जाता है, जिन्होंने लद्दाख के राजा के कहने पर 108 गोम्पास बनाने का जिम्मा लिया था। कहानियां सुनने के बाद लामायूरू को देखने का हमारा नजरिया एकदम बदल सा गया। Being there felt like a huge blessing. एक ऐसी जगह जहाँ नेचर और हिस्ट्री साथ साथ जिंदा है। तो अभी हम लोग आए थे, कहाँ आए थे? लामायूरू। 1000 कितना पुराना है? 1100 पुराना है। 1016 से लामायूरू में हम लोग पोल्टा खा रहे हैं। 1016 ये हमारे भाषा में पोल्टा बोलते हैं, तेरे भाषा में क्या बोलते हैं? पोल्टा पा पा हमारे पोल्टा भाषा में क्या बोलते हैं? जिसको भी अपनी तरफ कैमरे से कृपया खींच लीजिए। पोल्टा हम लोग पोल्टा बोलते हैं। पोल्टा है ना? रेसिपी से स्पेशल मंगाया ना हमने, ऐसा नहीं देखा। पा बनाने वाला। ये पांडे कुछ काम करनी है। सबसे यूजलेस कैरेक्टर कहाँ है? ये पता देता सबसे यूजलेस। आज इसने गाड़ी चलाया है, बाकी कुछ काम नहीं इसका। और हमारे भाई सोनम जिम में हमारे साथ पहली बार फट गया यार मुंह पूरी तरह से। नेक्स्ट लेवल क्रिएशन है भाई पहाड़ की। जैसे ये वाला एरिया नहीं है, ये वाइट पोर्शन मतलब सैंड जैसा है पूरा, मतलब रेत के जैसा है। आज तो पक्का मेमोरी फुल हो जाएगा लग रहा है। डिलीट मत करना, पहले डिलीट करने से पहले बता देना। अब इधर का पहाड़ फोटो खींचना, ये अलग है, ये वो टाइम लेस टाइम वाला। बैक कैमरा कहाँ से ऑन होगा? रिमोट कहाँ खेल रहा है? बस एक रिमोट कहाँ पीछे रख दे। अच्छा ये जो है लेक नहीं गया रास्ता, सबसे पीछे रख दे। ये वाला रास्ता लेक हो गया और उधर से आया हम कारिया से। थोड़ा बहुत लद्दाखी लगता है। श्रीनगर भी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ पर। पिछली बार हम लोग घूमे थे उधर, सोनमार्ग शायद सामने होगा, है ना? ज़्यादा नहीं होगा तो 220। पहले कारगिल आएगा, उसके बाद आएगा ना सोनमार्ग। यहाँ से वही रास्ता पहुँचेगा ना? 90। तू है मेन कैरेक्टर। श्रीनगर से आए और वहाँ से वापस पहले ट्रिप मारा था हमने, सोनमार्ग से आया था, सोनमार्ग से कारगिल था 150। Places like Lamayuru reminds you why journeys like this are worth every challenge.
The difficult roads, the long riding hours, and the exhaustions, everything suddenly feels insignificant when you are standing in a place like this extraordinary. मुझे लगता है कि लद्दाख सिर्फ रोड्स और माउंटेन्स के बारे में ही नहीं, It's about discovering places that makes you stop, that makes you look around and simply makes you admire what nature has created. एक बात तो पक्की थी, that the Lama Yuru सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं था, ये लद्दाख के उन मोमेंट्स में से एक था जो हमेशा याद रहने वाला था.